This is the very beautiful statue and very big one also, and this is the pond I am talking about, and there is my cottage there. और मैंने यहाँ देखा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मॉन्क्स नन्स बनते हैं, भले ही कम समय के लिए बने या लाइफ टाइम के लिए बने, वो लोग जो हैं बहुत यंग होते हैं. इवन 18 और 20 एज के बहुत सारे मॉन्क्स एंड नन्स मिल जाएंगे. दिस इज़ बिग वन. देयर इज़ ऑल्सो वन कॉटेज देयर एंड देयर इज़ अ लाइन ऑफ कॉटेजेस लाइक दिस टिल लास्ट देयर. एक ये भी एक बहुत कल्चर है, यहाँ स्टोन्स में लिखते हैं इस तरीके से, एंड यहाँ स्वीपिंग कर रहे हैं. This is also one cottage for I think monks or nuns, and this is the Buddha statue. You can see lots of Buddha statue are there, and very big Buddha statues are there. This is a sitting area here. You can sit and have tea. ये कुछ लिखा हुआ है वियतनामी लैंग्वेज में, but I don't understand. Maybe the Vietnamese people can understand it better. What is written? See the jugaad, how they have made one cottage here. Separate cottage. Maybe some lay persons also live here. While I am making the vlog, I am trying to focus on my breath, and I am trying to do walking meditation. Like this, we have small cottages for individual monks and nuns here. Morning friends. अभी जो है सुबह के 7:24 हो रहे हैं. And this is my cottage where I am living in the Phuksam Monastery, and this is just a lake in front of our cottage. Small pond, not lake. And आप शायद देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वृक्षों का स्टैचूज़ बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बुद्धा की एक बहुत बड़ी स्टैचू है. आज मैं आपको दिखाऊंगा. ये कॉरिडोर है जहाँ हम चलते हैं. अभी थोड़ी देर बाद हमें वर्किंग मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग स्वीपिंग करेंगे. वी विल हैव द स्वीपिंग मेडिटेशन टुडे, एंड जस्ट आई हैव स्वीप द अपर पोर्शन इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, एंड देन आई विल स्वीप दिस एरिया in the afternoon when we are free, like these monks are sweeping. You can see they are sweeping the area, cleaning it. And this is a Buddha statue here. Here also you have the Buddha statue, and the biggest statue is there. It's a small pond. We have lots of fish here. We give food to the fish, and we give food to the dogs also. We have 2 dogs here. Like this, we have small cottages for individual monks and nuns here. Small cottages. When you do the registration here for 10 days or maybe more, maybe for months, maybe for years, you will get the cottages. I think the senior monks get such cottages, separate cottages for living here. This is the entrance gate from where you can come inside. And these are the separate cottages here, single cottages for monks and nuns. This is a sitting area here. You can sit and have tea and can have dhamma discussion here. So it is a small portion here also. Then we go towards the Buddha statue, and you can see this is the Buddha statue we have. I will make just a simple vlog to tell you about this Phuksam Monastery and how it looks from inside. So not too much editing work I will do, but yes, I will make a good vlog so that you can know about this monastery more. And these are the dog here. They sleep here. Hello. They are in the sleeping mode now because they wake up at night. This is the very beautiful statue and very big one also, and this is the pond I am talking about, and there is my cottage there. And it's a very big monastery. Around 30 acres land it has, so it is very difficult to visit all the places at a time. At a time it is very difficult to visit all the places, so I am just
making small vlogs of different places where we visit. This is the path here. You can see monk statues there going for alms. These are the statues you can see. It's total a forest monastery. Lots of trees are here. We have papaya tree also, and it is a very beautiful tree. This one, very beautiful. And we have a small stream of water also here, you can see. Maybe it is used, this water is used for farming. In English it is called Meritorious Mountain, the meaning of this monastery. And in real life also, we should collect as much as merits we can in order to have a peaceful life. So whenever we get time, we should take refuge of Buddha, Dhamma and Sangha, and we should try to learn the teachings of Buddha, the precept. So when you come near to the nature, your spiritual development becomes quite easy, quite very fast. And when you take refuge to Buddha, Dhamma and Sangha, if there is a Sangha and if you are in such a forest monastery, then you will have much better spiritual development, and you will grow more in your meditation practice also. There are some people working there. Some construction work is going on, I think. And this is the path on which I am walking right now. It is a kind of small monastery or sitting place. There is a Buddha statue there, and it is a Buddhist environment everywhere here, so I like it. There are the cottages, more cottages where you can sit and meditate. And here also we have some cottages, maybe for senior monks, I think, I don't know. But here also there is a small monastery here. The monks are working, and this is the Buddha statue here, you can see. I'm just trying to make a simple vlog and try to take you the places, various places here, because it is a very big monastery and it is very difficult to cover it at a time. So I will make small different vlogs so that all of you can understand it, all of you can know how they create an environment in the forest monastery here. I think it is the map. No, it is not the map, it is Abhidhamma. But it is in I think Vietnamese language, so I am not understanding it very well. Maybe the people who know the language can tell much better about it, can explain much better. And this is also a Buddha statue here, and here also we have a Buddha statue here. Very big monastery, and around 700 monks and nuns lives here at a time. So it's really a very big monastery, and the management here is very good. And when you come in such monasteries, you get a proper environment, a proper learning environment. You get lots of good masters, teachers or monks who tell you how to develop your meditation practice, how to follow the Eightfold Path, how to follow the precepts. So it becomes quite easy. And now I am going here, and the road is not quite good, but I will take you see how the trees are here. I think this is the coconut tree. Very beautiful trees are here, and very good environment also. Those who like forest, rivers, mountain, they will like this environment very much. And I think once in a lifetime we should try to come. This is also one cottage for, I think, monks or nuns.
They have all arrangement. They have the solar water heater also there. And this is one cottage here, separate cottage. Maybe some lay persons also live here with the monks. And this type of vehicle they have to carry small things from one place to another, because it is a very big monastery. So if you have to carry some luggage, then you have to see the jugaad, how they have made, and they are using it. This is the old one. So this is the very beautiful and very big place. I think my walking and jogging is done very easily here. And it's a very beautiful place. These are the separate cottages you can see here also. Lots of such cottages are there everywhere. Everywhere we have these cottages here for separate monks and nuns. This is the sitting area you can see. This is the sitting one, and it's very beautiful, amazing, peaceful. One can develop mindfulness quite easily here, and it is much bigger than the Plum Village monastery. The Plum Village monastery was around in 15 acres, and it is just double, around 30 acres. So it is very big place, and I am hopeful that someday in India also such forest monastery will develop. If we all can work together, we can do it, because we need a favorable environment, a peaceful environment where the people can go and learn. Here lots of young generation people come and they learn Dhamma. They attend the retreats of 10-day, 20-day, and they try to learn. So here is one gate. I don't know where I have came now, because it is very big place. Maybe I will get lost after some times. These are the cottages that I was showing you, and there also cottages are there. This is the entry gate. I don't know whether it is monk's place or nun's place, but I am just making the video. Yeah, and here also you have a very big Buddha statue, so we can see it also. Yeah, this is the Buddha statue. Here you can see. Here, this is the cottage. There is one cottage. Here are lots of cottages, separate cottages. Maybe according to the monks and nuns lives here. Maybe if some senior monks, they have, I think, such places, and the monks which are just, they have started a monastic life, they have, I think, small cottages like this. This is big one. There is also one cottage there, and there is a line of cottages like this till last there, and there are lot more. And this is the Buddha statue. You can see lots of Buddha statue are there, and very big Buddha statues are there. It's a very big campus, and have a look around it, and lots of trees. It's a complete forest, and very calm, quiet, peaceful. While I am making the vlog, I am trying to focus on my breath, and I am trying to do walking meditation, and simultaneously I am trying to show you the area around. I think young generation people should come if they are willing to have a good time. They can come to Phuoc Son Monastery in Vietnam, and this monastery is around 45-46 kilometers from Ho Chi Minh City Airport. There are 4 airports here. You have to come to Ho Chi Minh City Airport, and then from there you will have 1 hour 20 minutes ride to this monastery. And you can see here
Lots of cottages are there everywhere. Cottages and this big tree. It looks very beautiful. These trees are very tall, very tall. Just we have in Manali and Shimla like that. These trees are very big, and I think it is the original trees from the forest. They have not planted it. So these are also the monk cottages here. They are sweeping the area. You can see. There also we have the cottages. So there are plenty of cottages. आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितने लोग एक साथ रहते होंगे. और ये देखिए, ये बुद्धा की एक स्टैचू है यहाँ पे. यहाँ जगह जगह ऐसे बुद्धा की स्टैचू बनी हुई है, जगह जगह बनी हुई है. यहाँ पे है, वहाँ एक बुद्धा की स्टैचू है. और फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी जो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने सबसे पहले सद्धम्म को जाना, समझा और एनलाइटेंड हुए, ये उनका स्टैचूज़ है अलॉन्ग विद द बुद्धा स्टैचू. एंड अब हम आगे चलते हैं. और मैं इस व्लॉग को ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, बहुत सिंपल रखूँगा ताकि आप सारी चीज़ें देख सकें. और आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि पूरा व्लॉग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनमें इसको फैलाएं, ताकि कोई अगर यहाँ आना चाहता है या वियतनाम विज़िट कर रहा है तो यहाँ ज़रूर आए. क्योंकि ये जो है सन जो मोनास्ट्री है, ये सबसे बिगेस्ट मोनास्ट्री है वियतनाम की. एंड बहुत रेपुटेड मोनास्ट्री है. और इस मोनास्ट्री की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे ये जो है मॉन्क्स को, नन्स को अलाउ करते हैं. इवन मैंने यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को देखा है जो फिज़िकली चैलेंज हैं, उनको भी ये यहाँ पे रहने के लिए परमिशन देते हैं ताकि वो धम्मा के बीच रहें, सद्धम्म के बीच रहें अपने आखिरी समय में, ताकि उनका आने वाला जो समय है वो अच्छा हो सके. तो इस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम चल रहा है. यहाँ पे अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. दे आर मेकिंग न्यू cottages here. They are making the new monks. Monk is looking after all the working here. And इस तरीके के कॉटेज बनेंगे, ये भी बन रहा है. तो यहाँ पे ये इसका एंट्री गेट है इस तरीके का. ये वुडन का बन रहता है पूरा, और बहुत अच्छा वुड है. ये काफ़ी साल चलता है, सालों साल चलता है. इस तरीके से ये यहाँ पे भी कुछ कॉटेजेस हैं. मतलब एक दिन में मैं ये इस तरीके से यहाँ पे स्वीपिंग मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जिसके पास जैसा समय रहता है. मेरा टाइम दोपहर का है तो मैं आफ्टरनून में करूँगा. मॉर्निंग में मैंने अपना कॉटेज का स्वीपिंग किया है. नन्स हैं इस तरीके से, दे यूज़ व्हीकल्स ऑल्सो समटाइम, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, पैदल कब तक चलेंगे. तो किसी किसी के पास इंडिविजुअल व्हीकल्स भी हैं. और ये एक छोटा सा स्टोर है, ये स्टोर है, यहाँ से आप जो है कुछ चीज़ें लेना हो तो ले सकते हैं. मैं भी गया नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही शो करता हूँ आपको क्या क्या है. एक राशन का पूरा सामान है जो जो आपको चाहिए. यहाँ ड्रेस भी है, मुझे ड्रेस लेना है, मैं लूँगा ड्रेस बाद में. इस तरीके से है यहाँ, इस तरीके से ड्रेस है. मुझे इस कलर में ड्रेस लेना है. और यहाँ बाउल्स हैं, आर्म बाउल्स जिसको हम पात्र बोलते हैं. बुद्धा का फोटो है. यहाँ पे आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे, यहाँ आपको छाता मिल जाएगा. यहाँ आपको कोल्ड ड्रिंक्स, सोप एंड बकेट्स, एवरीथिंग यू विल गेट हियर. जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, उसका पूरा सामान जो है आपको यहाँ मिल जाएगा. और ये कुछ लिखा हुआ है वियतनामी लैंग्वेज में, बट आई डोंट अंडरस्टैंड. मे बी द वियतनामी पीपल कैन अंडरस्टैंड इट बेटर व्हाट इज़ रिटन. इस तरीके से व्हीकल से लोग घूमते हैं यहाँ, कैंपस बड़ा होने के कारण. और यहाँ जो अभी टेम्परेचर है बहुत ह्यूमिड है, अभी बारिश हो रही है लेकिन ह्यूमिड भी है. ये भी कुछ लिखा है स्टोन में. एक ये भी एक बहुत कल्चर है यहाँ, स्टोन्स में लिखते हैं इस तरीके से.
जगह जगह पे। और यहाँ के ये नेचुरल स्टोन्स होते हैं जो यहीं से निकलते हैं, तो उसी को यूज़ करते हैं। और ये भी एक सिटिंग एरिया है यहाँ। ये भी यहाँ लाइन से कॉटेजेस बने हुए हैं। ये शॉप मैंने आपको दिखाई थी, इससे लगे हुए कॉटेजेस हैं। इस तरीके से ये लोडिंग व्हीकल्स वो यूज़ करते हैं सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। एंड यहाँ स्वीपिंग कर रहे हैं। इस तरीके से सबको टास्क दिया जाता है ताकि आप जो यहाँ रह रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स को भी आप क्लीन रखें। और ये डेली करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी ट्रीज़ हैं, तो कचरा जो है जमा होता है। इस तरीके से ये लोग यहाँ स्वीपिंग करते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से बैनर्स भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। लैंग्वेज में अभी पढ़ नहीं सकता हूँ बिकॉज़ ये सब वियतनामी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे भी लाइन से कॉटेजेस हैं, आप देख सकते हैं। एंट्री है, यहाँ कपड़े भी सुखाते हैं। तो इस तरीके से कॉटेजेस बने हुए हैं। व्लॉग थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन बहुत उपयोगी रहेगा, आप लोगों के लिए जानकारी मिलेगी और एक विज़न भी मिलेगा कि किस तरीके से बाहर कंट्रीज़ में, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में काम हो रहा है और हम क्या लैक कर रहे हैं, हमको कैसे डेवलप करना चाहिए। और ये इस तरीके डॉर्मेट्रीज़ भी हैं। या मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बिकॉज़ ये इस तरीके के डॉर्मेट्रीज़ हैं। एक बेड है यहाँ पे, एक बेड लगे हुए लाइन से और पीछे तक हैं। और इसमें जो है आपको मच्छरदानी और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा बिकॉज़ कुछ लोग आराम भी कर रहे होंगे, हो सकता है, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। और ये एक पोर्शन है, ये इस तरीके की जो कुटी है एक व्यक्ति के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए। ये बहुत ही मुझे बहुत पसंद आई, सिंपल और सोवर, ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर इस तरीके से कुटी बनाएंगे तो यहाँ तो बहुत सारी बन जाएगी। और यहाँ एक मॉन्क, एक नन ऐसे रहते हैं, उपासक लोग भी रहते हैं। तो अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन चलता है यहाँ 4 बजे से 6 बजे तक। और फिर उसके बाद में वॉकिंग मेडिटेशन होता है। और फिर उसके बाद में 6:30 हम लोगों का नाश्ता हो जाता है। फिर 8 बजे के आसपास चैंटिंग होती है और धम्मा डिस्कोर्स भी होता है। और फिर उसके बाद जो है वर्किंग मेडिटेशन आफ्टरनून में होता है, लंच के बाद। और आप चाहें तो अपने कुटी में मेडिटेट भी कर सकते हैं। फिर इवनिंग में जो है हम लोग जो है फर्दर और मेडिटेशन करते हैं। और अभी मेरी सांस थोड़ी फूल रही है बिकॉज़ मैं काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ। और ये मैं कैंपस के थोड़े ओपनिंग डोर के आसपास आ गया हूँ। वो वहाँ पे डोर है, उसके आगे मोनेस्ट्री है, लेकिन वो मोनेस्ट्री का पार्ट जो है मैं इसमें कवर नहीं करूँगा, मैं अगली बार बनाऊँगा। ये नन हैं, इन्होंने मुझे जो है स्लीपिंग बैग दिया, पिलो दिया और फूड सुबह अर्ली मॉर्निंग they bring food also, breakfast also for us and blanket, everything they have helped us। इन्होंने बहुत मदद किया, मतलब यहाँ मुझे तो बिन मांगे सब अवेलेबल हो गया। मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं। पहले दिन में आया तो मैं मैट पे ही सो रहा था ऐसे ही, दूसरे दिन भी। फिर इन्होंने देखा आने के बाद, तो इन्होंने फिर बाकी चीज़ें अवेलेबल कराई। तो वो एक स्लोगन है इंडिया में भी, व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अराइजेस। मीन्स अगर आप रेडी हैं तो आपको कोई ना कोई गुरु सही समय पे मिल ही जाएगा। और मेरा यहाँ आके ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट मुझे लगा कि यहाँ मुझे मोनास्टिक लाइफ में रहना चाहिए। तो मैंने जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, और क्योंकि मुझे यहाँ
थोड़ा लंबे समय का वीज़ा मिला है, तो मैंने बोला क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए और इस तरीके का वातावरण, इस तरीके का इन्वायरमेंट, टीचर्स और शेड्यूल जो हमें एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए कहाँ मिलेगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि यस, आई विल लिव अ मोनास्टिक लाइफ फॉर सम टाइम हियर, बिकॉज सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती और मुझे मिली है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में भी तो नंबर 1 हूँ। सो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। यहाँ पे जो है चेयर्स हैं, मैं भी जब ज़्यादा मॉन्क्स और नन्स होते हैं तब ये चेयर्स यूज़ करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मोनास्ट्री है और मोनास्ट्री हालांकि अंदर है, ये उसकी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बट यहाँ एक मोनास्ट्री है और दे हैव अ वेरी बिग बुद्धा स्टैचू ऑल्सो देयर एंड यू कैन सी दिस इज़ द बुद्धा स्टैचू हियर। दिस इज़ द बुद्धा स्टैचू, यू कैन सी। और इस बुद्धा स्टैचू के पीछे जो है मोनास्ट्री है। तो अभी मैं मोनास्ट्री को कवर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये पूरा एरिया है। देखिए मॉन्क सुबह सुबह जो है स्वीपिंग करते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्किंग मेडिटेशन। और यहाँ लाइन से कॉटेजेस बने हुए हैं, सिंगल उपासक उपासिकाओं के लिए भी हैं, नन्स के लिए भी हैं, मॉन्क्स के लिए भी हैं। और यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप जैसे जैसे चलते जाएंगे बहुत सारे मॉन्क्स, नन्स आपको जो है मिलेंगे। एंड इतने सारे मॉन्क्स और नन्स एक साथ देखने को नहीं मिलते, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इस तरीके से ये लोग अलग अलग बैनर्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल है, लर्निंग के हिसाब से है, बट ये वियतनामी लैंग्वेज में है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट यस, इट इज़ फॉर लर्निंग, फॉर मोटिवेशन। monks are there, they are early morning, they do walking meditation also। and ये सारे यहाँ पे भी देखिए लाइन से कॉटेजेस बने। एरिया बहुत बड़ा है, ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ हैं, सब अर्ली मॉर्निंग स्वीपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो है मुझे आपको दिखाना था, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लगे कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, मतलब हम लोग अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। हमारे विहार तो छोटे छोटे हैं और वहाँ कुछ ऐसा एक्टिविटी भी नहीं है। यहाँ तो साल भर फुल रहता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑल ओवर वियतनाम से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। कोई चाइना से है, कोई जापान से है, कोई इंडिया से है। वियतनाम से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि लोकल यहाँ के वियतनामी पब्लिक बहुत आती है। और मैंने यहाँ देखा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मॉन्क्स नन्स बनते हैं, भले कम समय के लिए बने या लाइफ टाइम के लिए बने, वो लोग जो हैं बहुत यंग होते हैं। इवन 18 और 20 एज के बहुत सारे मॉन्क्स एंड नन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक जो है ना कल्चर है एक्चुअली, शायद ऐसा कल्चर है कि यू हैव टू बिकम अ मॉन्क और नन फॉर सम टाइम इन योर लाइफ। तो वो कल्चर ये लोग फॉलो करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। ये सारे कॉटेजेस हैं यहाँ पे एंड लॉट्स ऑफ लेमैन आर देयर। तो वो आपको बाव करते हैं, प्रणाम करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई कॉटेज and after some time I will upload this vlog। please आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि व्लॉग्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए स्पेशली, और इसको कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं इस तरीके के व्लॉग्स जो हैं आप लोगों के लिए बनाऊं और इस जगह के बारे में और जानकारी आपको दूं। अभी इसकी हिस्ट्री मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताने का आपको कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि कभी भी यहाँ धम्मा टॉक्स होते हैं, बट यहाँ जो धम्मा टॉक्स होते हैं वो वियतनामी लैंग्वेज में होते हैं।
इंग्लिश में भी नहीं होते हैं, तो अंडरस्टूड करना आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा। बट अगर कोई मॉन्क इंग्लिश में अगर धम्मा टॉक करते हैं तो मैं ज़रूर उसका ब्लॉग बना के अपलोड करने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा। एंड मेरी बस यही इच्छा है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, एटलीस्ट वो इन चीज़ों को देख के कुछ सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरीके की फॉरेस्ट मोनेस्ट्री इंडिया में भी डेवलप हो। बिकॉज़ हम लोग करोड़ों रुपए बहुत ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं हर साल। हम लोग उसको यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में भी कर सकते हैं। इस तरीके की मोनेस्ट्रीज़ डेवलप करके इंडिया में हम लोग काफ़ी जगह ऐसे मोनेस्ट्रीज़ डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे लोग आएँ, सीखें, जहाँ बहुत सारे मॉन्क्स नन्स इकट्ठा रहें। और मॉन्क्स और नन्स रहने का फ़ायदा ये होता है कि लेमैन को भी बहुत कुछ बहुत जल्दी अर्जित करने का मौका मिल जाता है। बिकॉज संघा का अपना एक पावर है, अपना एक इफ़ेक्ट है। और ये मोनेस्ट्री है जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में आते हैं और चैंटिंग होती है यहाँ पे। तो ये मोनेस्ट्री है। अभी यहाँ पे कारपेट बिछी थी, लेकिन अभी साफ़ सफाई चल रही है, इसलिए कारपेट हटा दिया है। केवल ये कारपेट है अभी। और वहाँ पे एक बुद्धा की स्टैचू है। और एक और मोनेस्ट्री है, इससे बड़ी है। यहाँ काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं अलग अलग, क्योंकि सभी लोग एक जगह एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। 700 तो मॉन्क्स नन्स हैं, फिर लेमैन मिला के भी मेरे ख्याल से 300-400 लोग तो इजीली होंगे। तो ये इतने सारे लोग एक मोनेस्ट्री में नहीं आ सकते। तो ऐसी बड़ी बड़ी काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। उसमें से ये एक है, ये बुद्धा स्टैचू। और मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ से मैट वैट हटा दिया गया है, नहीं तो यहाँ